जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का जो टॉपिक था वो मैं ट्रसेस के ऊपर डिस्कशन कर रहा था। ट्रस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कहा था कितने तरह के ट्रसेस थे, व्हाट इज द ट्रसेस। तो समझ में आया था कि ट्रसेस एक प्रकार का एक हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर है and they are the made of the iron rods or the channel section and they are riveted together with the rivet or the welded joint and the joint are hinged or pin jointed joint. Basically on the basis of the equation n is equal to 2j minus 3, they are the two types of the frame are used on that particular equation which is satisfied: perfect frame and imperfect frame. So let's start with the another. What are the assumptions made to solving that particular problem of the that topic? What are the assumptions of the for the force in the member of a perfect frame? जैसा कि हमने बताया कि फ्रेम पे क्या होता है कि आपने लोड लगाया और लोड लगाने के बाद उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा है, लेकिन डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा है वो तो लोड को कहीं ना कहीं बियर कर रहा है। तो वो जो लोड को बियर कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो फ्रेम आपका आपने लोड लगाया, दैट इज W is impinging on that particular triangular section of the frame. So that's why the Newton third law, every action has equal and opposite reaction. So that's why they have applied the reaction force on that particular surface, normal to the surface. So how to calculate it the that particular reaction on that particular trusses? First task, and the second task is how to find the force on that particular frame. So that's why assumptions are made. Assumption for in the member of perfect frame, following assumptions, this is very important. All the member are pin jointed. हम जो कंसीडर करते हैं कि जो भी जैसे इसलिए if you suppose the frame is that if you suppose the frame is that and the frame is this, if you suppose this is a triangular frame and the triangular frame is a, how many members of that particular frame is 1 2 3, and this and this are the pin jointed. How to apply that particular question or a task in that way? So all the members are the pin jointed. This is the first task. कोई फिक्स नहीं है। पिन jointed क्यों? फिक्स पे कहीं मूवमेंट नहीं है। So that's why there are the assumption all the members are the pin jointed. The frame is loaded only at the joint. जो भी फ्रेम होगा वहां पे ज्वाइंट पे ही लोड, ये नहीं कि आप किसी मेंबर के बीचों बीच लोड दे दीजिए, नहीं। फ्रेम इज लोडेड एट द ज्वाइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेम। आप ज्वाइंट पे ही लोड को दे सकते हैं। दैट इज द सेकंड assumption which is made. The frame is a perfect one. Perfect frame जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है, the frame is in equilibrium. We satisfy the equation n is equal to 2j minus 3. Number of the members is equal to number of the joint in that particular frame is satisfy the equation is n is equal to 2j minus 3. So the frame is a perfect frame. कोई imperfect frame ना हो, deficient या redundant type का frame आप ना यहाँ पे यूज करें। The second one is the weight of the member. जो weight of the member है, जो bars यूज कर रहे हैं उसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। I'm not consider the weight of the member and negligible in comparison with the or other external force or load acting on the trusses. जब हम लोड की बात करेंगे सिर्फ जो फ्रेम में है, we not consider on the particular weight of the members safe, और उस मेंबर के ऊपर की बात नहीं करेंगे, बस सिर्फ मैं लोड की बात करूंगा। सो दिस इज द assumption वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट द ऑल द मेंबर्स आर द पिन जॉइंटेड, सिर्फ पिन जॉइंटेड, उनको फिक्स नहीं करेंगे आप। पिन जॉइंटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिन जॉइंटेड? पिन जॉइंटेड मींस the joint are only a move but it not rotate. इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी कि ये हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं कर सकते हैं या फ्री है, मतलब यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मोशन कर, आप ये वर्टिकल मोशन नहीं कर सकते, सिर्फ घूम सकते हैं अपने स्थान पे। So that type of the joint is known as a pin jointed. So and the frame is loaded only at the joint and the frame is a perfect one. हम लोग रिएक्शन निकालते हैं। पहला टास्क हम लोग ये देखेंगे कि रिएक्शन कैसे निकालते हैं। रिएक्शन निकालने के लिए फ्रेम विद सिंपली सपोर्टेड एंड, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड एंड है हमारा फ्रेम का, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? बेसिकली क्वेश्चन हमारे सिंपली सपोर्टेड एंड पे ही आते हैं।
फ्रेम विथ वन एंड फिश एंड अदर एंड इज रोलर है या मतलब नहीं, और सेकंड वन इज द कैंटिलीवर बीम और बोथ द एंड आर फिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द दिस। एक हम मानते हैं एक ट्रसेस है हमारे पास जो 5 mm स्पैन। व्हाट इज द स्पैन, मतलब 5 एक ट्रस है जिसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर की है। एज शोन इन द फिगर फाइंड द रिएक्शन एंड द टू सपोर्ट। हमारे पास ये एक आपका एक फ्रेम है, तो बिल्कुल एक ट्रायंगल शेप का लेकर आए, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं इस क्वेश्चन में, ये आप ये जो डॉटेड लाइन सी से डी के ऊपर मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है यहाँ पे। वैसे फ्रेम ये पूरा था, ये फ्रेम बटा नहीं है। अब आपको यहाँ पे रिएक्शन निकालना, मान लीजिए जब 30 किलो न्यूटन का लोड इसके ऊपर गिराया जा रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर बी इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। सो हमें कभी भी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम हम ये मान के चलते हैं कि ये सामान्य अवस्था में है, ये इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रही है। अब जब ये इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रही है मेरे भाई, तो इसको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। ऑल द हॉरिजेंटल फोर्स इज इक्वल टू 0, all the vertical force is equal to 0, and moment acting on that particular force is equal to 0. So that's why we applied on that particular. So consider 3 equation. The vertical force is acting on the 0. The vertical force is acting on the 0. The moment is acting on the 0, and the horizontal force is acting on the 0. Yes or no? What is the next task? नेक्स्ट टास्क आपको ये दिख रहा होगा कि ये 20 से लाइन नहीं, ये 20 नहीं, एक्चुअली ज्योमेट्री थोड़ा अंतर है। अब आप जब आप वर्टिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन इज दैट इफ योर वर्टिकल ऊपर जाता है तो प्लस होता है, बार बार बता दिया, अब तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गया। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 3, कोई इज इक्वल टू 30। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 30, क्योंकि वर्टिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई, हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो ये तो सेटिस्फाई है, इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। अब मूवमेंट की बात कर, मूवमेंट किसके अबाउट ले ले भैया? ए के अबाउट मूवमेंट ले ले। चलो ए के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं। मूवमेंट अबाउट ए, मैंने कहा मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। ए के अबाउट सारा मूवमेंट क्या है? 0 है। तो देखिए मूवमेंट में हम क्या देखते हैं, मूवमेंट होता क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू। और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि वो क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। हमने अभी तक ये कंसीडर किया आज तक इतने क्वेश्चन करते वक्त कि क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज टेकन एज नेगेटिव। सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर दैट दिस इज द क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड द एंटी क्लॉकवाइज, एंड ये क्लॉकवाइज। अब डिफरेंस ये है कि सुभाष सर एक चीज तो हमें बताई नहीं आपने, क्या? क्योंकि जब हम ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये तो मालूम है 5, और ये फोर्स मान लीजिए यहां तक आ गया सीधे, तो इसकी परपेंडिकुलर ये नहीं मालूम है, ये कैसे निकालेंगे? हाँ, दैट इज द टास्क। पहले हम इस टास्क को पूरा करते हैं। हम इस टास्क को जब पूरा करते हैं, सो बेटा, तो मूवमेंट हम पहले लेते हैं, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर बी इंटू 5 इज इक्वल टू 30 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी भाई? ये लोड मान लो सीधे आ रहा होगा और इससे 90 डिग्री ऐसे है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 90। सो ये क्या हो जाएगा? एडी। हमें एडी की वैल्यू सुभाष सर बता दीजिए कैसे निकालते हैं। बिल्कुल ये समझिए, यही इंपॉर्टेंट टास्क है। एडी की वैल्यू निकालने के लिए आप ये समझिए पूरा सेक्शन आपके पास क्या है, ये पूरा सेक्शन है आपके पास ये, इफ यूर सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, ए सी बी आपका क्या बनना है? 90 डिग्री बन रहा है। ए सी बी, ये देखिए यहां से 90 डिग्री टाइप का बन रहा है। ए सी बी 90 डिग्री बन रहा है, तो हमें मालूम है एज पर द ट्रिग्नोमेट्री पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पीबी बी, और हमें देखिए ये मानते हैं ये 90 डिग्री बन रहा है, तो मेरे भाई ये तो हो जाएगा आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब देखिए मैं पहले इसको निकाल लेता हूं फिर, क्योंकि अभी इसको तो नहीं निकाल रहा है, तो अभी तो मैं ये वैल्यू तो डॉटेड लाइन इसीलिए मैंने खींच दी थी यहां पे। सो देखिए हम क्या लगाएंगे? कॉस लगाया, और कॉस कितना लगाया? 60 डिग्री लगाया, इज इक्वल टू व्हाट? कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? आपको मालूम है
कि आपका क्या होता है बेस